Good morning, students. A very good morning to all, and welcome to our class. I, Dr. Pushpalata, is here to introduce about the chemical bonding. After the periodicity or periodic properties, the next chapter is about chemical bonding. Which one is the most important chapter of the syllabi? So as we know that there are 118 elements present in our periodic table. The total 118 elements. Clear? And these elements are of different kinds which constitutes all the matter of the universe. And it is very well known fact that the elements that can exist dependent or independently in their existence under the normal conditions, and under the normal conditions the noble gases only noble gases can exist as a independent existence, others are dependent. Or you may be say that only noble gases are found existed in their free states, other elements always be found in their combined formation, combined states. So these may be known in their noble state, free state. Is it clear? So as we know that most of the atom exist as molecule which may be formed by the addition of one or more atoms or by the aggregation of the number of atoms or ions or of different elements having a distinct existence and showing their own characteristics properties, and by that one large number of compounds can be formed, molecules can be formed which may exist in the nature. So now the question arises that if one atom can exist independently, atom can exist dependent. And if we are saying that compounds are be formed or atoms can be combined togetherly in different kinds of formation, the first question is why atoms can combine. Clear? So we can say that why do the atoms combine togetherly? Or you maybe say that why they forms bond. Here your word bond is be arise. Why do atom combines? Why they forms the bond? And after that, why do they combine? How they combine? If combination is be there, that how they combine? What kind of the nature of the bond is be there? And the second one, why a molecule is more stable? Because as we are saying, molecules, atoms are combined together to form the molecules, and molecules are stable. So our question is why these atom combines, how they combines, and why after the combination of the atoms, a compound formed, a molecule formed, that one becomes stable. So all these kind of the doubts may be cleared under this
chapter. Okay, because here we can be define why do atoms have fixed combining capacity, what will be the molecular shape of these molecules. Okay, so as we studied earlier under the chapter 2 about the structure of the atom. Okay, and in this chapter we are going to study the nature of the linkage, combination or the bonds between the atoms. So how can we define our bond? That one is, or chemical bonding, that one is the attractive force. The attractive force which holds the constituent particles, and these constituent particles may be atoms, ions, molecules, elements, etc. Any one these in a chemical species. Whenever they combine chemically, how much amount of energy is be required or not, that kind of force of attraction is known as a bond. You maybe understand this one with your friend, how much your bonding is be there, it depends upon your attractive forces. If that one is your best friend, it means the bond between you and that is very strong. If it's a non one, that time you may be said our bonding is not so strong. I'm just knowing them, not well knowing. Is it clear? So I'm just be saying a kind of attractive force that can act between the two particles to combine together to form a bond. That one is known as bond, and the process of forming this bond is known as a chemical bonding, reunion. Now here we proceed to the next. Why do these atoms combine? To answer the first question, why these atoms get combined? So as we described earlier, that atoms can be combined to form a molecule, and that molecule is a stable. So a number of attempts were made to explain these kind of the questions, and in the 19th century these kind of questions or causes may be explained by the understanding of the electronic configurations. So the scientists reply this question for acquiring the stability, and they said that every atom or an element want to be stabilized, so they want to be acquire stabilization or the nearest noble gas configuration. ठीक है, कौन सा nearest? And after that one, it may also be known as the octet rule. Here we describe all these one. So it has been observed that atoms of the noble gases have a little tendency or no tendency to combine with each other to form a different kind of molecule. It means these atoms must have stable electronic configuration, and those atoms who haven't any kind of stable electronic configuration, they want to be stabilized. And how we stabilize? We earlierly read this, that every atom wants to be 8 electron in their
outermost shell except the helium. Helium में 2 होते हैं ना. Is it clear? So all the noble gases with the exception of the helium have 8 electron in their outermost shell. Now what will be the name of the outermost shell? That one is known as the valence shell. Is it clear? Because acquiring these 8 electrons can considered as the most maximum stable configuration, and due to this stable configuration, the noble gas atoms neither have any tendency to gain or lose of the electron. Therefore their combining capacity 0, because an atom is unstable until and unless it becomes stable. कब तक जब उसका नीड कंप्लीट हो जाएगा तो वो स्टेबल ही हो जाएगा बेटा. तो इसको ही हम कहते हैं. So every atom want to stabilize or acquire the 8 number of electrons. outermost में 8 हो जाएं. So how can we, this one is the cause of the chemical bonding. What will be the cause? That one is the tendency to attain, simply लिखो आप शॉर्ट में, to attain a stable noble gas configuration, or maybe 8 number of electrons, gas configuration of 8 electron in their outermost shell. Clear? And this one is the cause of combination. Cause तो यही हुआ ना chemical combination का. And the principle of attaining the maximum number of 8 electron in the valence shell, that one is known as the octet rule. Okay? Principle of acquiring these 8 electrons, उसको हम बोलते हैं octet rule. Now the second reason for the stability is acquiring minimum energy. Minimum energy, stability के लिए. Minimum energy and stability. This one is the another best cause of bonding. Why the atoms form bond. Stabilize भी होने हैं. So according to the modern view of the atoms, to form the chemical bond to acquire a state of stability, that one is the minimum energy. Okay? As we know, every system in the universe has a natural tendency to attain a state of minimum energy, because the state of minimum energy directly corresponds to the maximum stability. For example, you can take out the example of water always be flow down to a hill. कभी ऑटोमेटिकली आपने देखा है कि नीचे वाला पानी अपने आप ऊपर चला जाए? नहीं, ऊपर से पानी फॉल कर सकता है, लेकिन नीचे वाले के लिए तो हमें क्या है, हेल्प ऑफ मोटर ही लेना पड़ेगा. तो जो ऊपर से आ रहा है, इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू फ्लो कर रहा था. जैसे ही वो नीचे गिरने होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? मिनिमाइज. And as much as a minimum energy that can acquire, उतना ही वो नीचे फ्री फॉल करेगा. क्लियर? तो हम उसमें क्या कह सकते हैं कि that one is the minimization of energy. So whenever the atom combines with other, a process lead to the lowering of energy. तो हमारे पास मेन 2 फॉर्मेशन आ चुके हैं बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करो और मिनिमाइजेशन एनर्जी. एंड टू अटेन दैट ऑक्टेट फॉर्मेशन हमें एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी बिफोर गोइंग टू द टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग. ठीक है? वैसे अगर इसी में करें
So there are two different kinds of the bond, ionic and covalent. In R plus 1, coordinate bond is also be there, other bonds also be there. We go through these one by one. So first you may be come out to the types of chemical bonding. इन बिटवीन कॉन्सेप्ट्स आएंगे, हम साथ साथ में ही कर लेंगे. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, द फर्स्ट वन इज आयनिक bond or bonding. Is it clear? It's a kind of bond that will be formed between the ions. How these may be formed, I am giving you a simple example, then we define it. Firstly, we have a atom having extra electron in their outermost shell. Okay? For example, आप लोग कंसीडर करो सोडियम का. What will be the electronic configuration of the sodium? It's 281. Is it clear? So to acquire the maximum stability or according to the octet rule, किसी में भी चले जाओ, nearest noble gas क्या है? If it lose one electron, then it becomes stable. 7 लेना तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है ना. क्लियर? तो हम उसे क्या है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये 2 और 8 आते हैं उसके आउटर मोस्ट में हो जाएंगे. सो वी कैन से दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा. नाउ व्हाट हैपन्स if by applying some ionization energy this electron of sodium is loosed. कि इसने लूज कर दिया, कोई भी एनर्जी लगाई हमने, अब ये क्या बच गया, सोडियम आयन में बन गया. नाउ व्हाट हैपन्स टू दिस इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा रोटेट कर रहा है. इज इट क्लियर? एंड सेकेंडली वी चूज अनदर ऑफ एन एटम, another of atom which have electron deficiency. कोई ऐसा ही चूज करो जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, लाइक क्लोरीन 287. अब इसके लिए 7 लूज करना इजी नहीं है. ऑक्टेट एक्वायर करने के लिए, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है, दैट इट कैन एक्वायर दिस इलेक्ट्रॉन. So it can grasp this electron, कहीं और से नहीं. ये जो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा रोटेट कर रहा था इधर उधर, क्लोरीन उसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और जब वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन. इज इट क्लियर? सो देयर मस्ट बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस कैटायन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन. And that attractive force of attraction may be known as the ionic bond, because that one is the bonding between the different ions. Is it clear? So you may be say that firstly an atom have extra electron, another atom have deficient, that electron can be. Now always be remember that the previous atom, ये जो इलेक्ट्रॉन था अब किसका हो गया, क्लोरीन का हो चुका है, सोडियम का इस पे कोई राइट नहीं रहा है. इट मीन्स कंप्लीटली ट्रांसफर है. दिस वन इज ओनली द अंडरस्टैंडिंग. इसको सिर्फ समझ सकते हो बेटा ऐसे. इसके डेफिनेशन इसीलिए हमारे पास होता है कि हम आपको क्या डेफिनेशन देते हैं आयनिक बॉन्ड की, द कंप्लीट transference of an electron from one atom to another. एक एटम से दूसरे एटम तक एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफरेंस हो जाए. इज इट क्लियर? और वो हमारे पास क्या है, आयनिक बॉन्ड भी होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. उसका भी हमारे पास रीज़न है कि इसका हमने सेकंड नेम
इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोला है? अब ये देखो, वैलेंट का मतलब वैलेंसी से, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, बिकॉज दैट वन इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ आयंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का. सो दिस वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक आयंस के बीच में जो लगती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अट्रैक्शन ही तो किया है. क्लियर? विच होल्ड्स, किसको होल्ड्स करेगी? द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयन. That's why the compounds which may be formed by this kind of bonding is known as ionic compound or electrovalent compounds. For example, as we earlier taken the NaCl. NaCl बना तो ionic compound हो गया. Is it clear? So we can say that an atom can acquire octet by gaining the additional electrons. Clear? If it has the less than 8 valence electrons, or by losing the electrons. When the complete transference of one or more electron from one atom to another atom takes place, that time a ionic bond is formed. So how can we write that one ionic bonds? For that one we may also be know about a previous रिवीजन ऑफ द लैविस सिंबल्स. ये हमने थोड़े थोड़े 10th में भी डिस्कस किए होंगे. रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें लैविस सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. okay? Why we are writing this one and how we write down the Lewis structure, I will tell you. Actually, as we know, all the electrons in atoms are not involved in the process of combination. क्या सोडियम के जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है 2, 8 वो पार्टिसिपेट हुआ? नो, only the outermost. Clear? Therefore, the inner electrons, inner shell electrons are well protected, and they are generally not participated in the bond formation. And this one is be proved by the Lewis, because Lewis pictured the atom in terms of the positively charged kernels. न्यूक्लियस के पास प्लस में जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा तो वहाँ डेफिनेटली क्या है, आप जस्ट इमेजिन करो, ये है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है. अब इलेक्ट्रॉन तो चला गया बाहर, ठीक है, यहाँ क्या बचा? एम्प्टी स्पेस. इस एम्प्टी स्पेस को ही हम होल, वैकेंसी या कर्नेल्स बोलते हैं. क्लियर? अभी इस पर तो नेगेटिव चार्ज था, जब नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया तो ये क्या बच गया? पॉजिटिवली चार्ज. सो these are the nucleus plus inner electrons होते हैं, and the outer shell that could accommodate the maximum 8 electrons. Thus, it is mainly the electron present in the outermost shell that take part in the chemical combination, and that one is known as valence shell electron. और इन valence shell electrons को ही हम Lewis के according, and Lewis used dot and क्रॉस. इसको क्या बोलते हैं? डॉट, और इसको हम बोलेंगे क्रॉस रिप्रेजेंटेशन लिया था टू शो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दोनों का शो करते हैं हम कैसे? सोडियम. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट हैव? यस, डेफिनेटली 1. तो 1 को हम कैसे शो करेंगे? एक डॉट लगा दिया. ये इसका लैब स्ट्रक्चर हो गया. क्लियर? अब आ जाओ क्लोरीन की बारी. इसको हम क्या है? 2, 8, 7. कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7. तो इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Is it clear?
तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हुआ है बेटा, आयनिक बॉन्ड कैसे हुआ हमारा, अगर हम उस आयनिक बॉन्ड को ऑक्टेट फॉर्मेशन के थ्रू दिखाना चाहें तो हमने क्या किया है, ये आपका फर्स्ट स्टेप। नाउ इन सेकेंड स्टेप दिस इलेक्ट्रॉन विल कंप्लीटली ट्रांसफर टू द क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में जब वो कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा तो सोडियम तो पॉजिटिव हो गया और क्या बच गया 2 8। एंड व्हाट हैपन्स टू द क्लोरीन, क्लोरीन के पास हमारे पास आ गया 7, तो उसके खुद से ही थे। एंड नाउ दैट प्लस इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये भी इसके पास आ गया। क्लियर। तो अब ये कैसे रिप्रेजेंट किया है, क्लोराइड नेगेटिव, and there must be a attraction between this chlorine and negative। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। so this one is the formation of sodium chloride। is it clear? different kinds of bonding may be shown by differently। अब ये आपके पास सोडियम क्लोराइड का है, यू मे बी राइट डाउन आयनिक इक्वेशन फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मॉलिक्यूल बनता है। हाउ कैन वी राइट डाउन द आयनिक इक्वेशन, सेम, शो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम, हाउ मेनी इट हैव 2, तो हम इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। क्लियर। क्लोरीन में सेम, कितना 2 8 7, तो आउटर मोस्ट में हमारे पास इसके 7 है। बेटा स्टार्टिंग हुई है चैप्टर की, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। इज इट क्लियर? अब आप देखो, अगर हम कह रहे थे कि इसको हमने क्या बनाना है, Mg2 पॉजिटिव, तो 2 और 8, उस टाइम आपके ये जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से लूज हो जाने चाहिए, कहीं चले जाओ भाई। अब इसने तो लूज कर दिए, इसका मतलब ये तो ये बन गया, बट दिस क्लोरीन रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इसको तो एक ही चाहिए, तो ये एक तो यहाँ ले लेगा। व्हाट हैपन्स टू द नेक्स्ट वन, तो इसका मतलब ऐसे हमारे पास 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं। acceptance of 2 electrons require 2 chlorine atom, तो आपका क्या है, एक क्लोरीन एटम, सॉरी इस एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला क्लोरीन ले लेगा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला क्लोरीन लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कैसे लिखेंगे रिएक्शन, हमारे पास जो थर्ड स्टेप आया Mg2 प्लस क्लोराइड नेगेटिव तो एक ही बनेगा, बट कितने क्लोराइड नेगेटिव हैं, 2 क्लोराइड, एंड दैट वन फॉर्म द MgCl2 टाइप। अगर इसी Mg2 पॉजिटिव के साथ अगर हम ऑक्सीजन को रखते हैं तो ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एक ही ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर सकता था और O2 नेगेटिव बना देता, हो जाता है नहीं, किसी दूसरे मैग्नीशियम के लिए कंसीडर कर लो, तो हमारे पास क्या है, ये O2 नेगेटिव बनता, एंड फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, MgO। क्लियर? सो यू मे राइट डाउन द different kinds of chemical reaction all for different molecule। AlCl3 के लिए लिखते तो हमारे पास वही आता, Al के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने क्लोरीन चाहिएंगे हमें, डिफरेंट 3, तो हम 3 क्लोरीन अरेंज करते हैं, तीनों में हमारे पास कितने होंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। You may draw with me so that you can understand। एक ही टाइम में नहीं आता। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा ये क्लोरीन, इस इलेक्ट्रॉन को हम दे देते हैं किसको, इस वाले क्लोरीन को। ठीक है, और ये वाला क्लोरीन चला जाएगा, सॉरी
इलेक्ट्रॉन जाएगा इस क्लोरीन के पास और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एल्यूमिनियम आयन, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए और यहाँ 3 क्लोराइड आयन बने हैं, तो क्या बन जाएगा AlCl3। इज इट क्लियर? सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो लूज कर रहा है, number of electron loss or gain by an atom, that one is known as electrovalency or electrovalence electrons. After losing it will form electropositive, after gaining these may form electronegative. Clear? And compounds like these one, if the same one, if we have Al3 plus O2 नेगेटिव, तो बेटा कैसे, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, ये +3 है और ये कितना है O नेगेटिव 2। अब नेगेटिव तो 2 नेगेटिव है, प्लस कितना है 3, तो हम क्या है इसके 3 एटम ले लेंगे ताकि ये कितना हो जाए 6 हो जाए, और इसके हम कितने लेंगे 2 एटम ले लेंगे ताकि ये +6 हो जाए, और जब दोनों में कितना आ जाएगा तो फॉर्मेशन किसका होगा Al2O3, तो ये भी एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। नाउ बाय डूइंग दिस वन यू आर एबल टू राइट डाउन द different kinds of ionic compound with the help of the Lewis structure or Lewis symbols. And why we are doing this one? Because different kinds of atoms be lies in our periodic table. Different का different nature है। यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, इसका मतलब आप यहाँ कह सकते हो आयनिक बॉन्ड में बी फॉर्म्ड ओनली of different atoms, बिल्कुल totally different होना चाहिए, one have a capacity to lose electron and another have a capacity to gain electrons. So you can be say that the formation of ionic compounds would primarily depends upon the age of formation of positive and negative ion from their neutral atoms and arrangement of positive and negative ions in the solid, कहाँ एक पॉजिटिव आएगा कहाँ नेगेटिव आएगा, वो हमारा क्या होता है लैटिस होता है क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स के लिए। क्लियर? सो दिस वन इज अबाउट द आयनिक बॉन्ड्स डेफिनेशन, लेविस स्ट्रक्चर, लेविस सिंबल्स मैंने ज़्यादा नहीं लिखे क्योंकि प्रीवियसली है इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मेशन में, तो आप उनको क्या है लिख ही सकते हो, क्योंकि कॉमन वैलेंस जो एलिमेंट का है दैट वन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स इन द लेविस सिंबल, और मे बी इट इज इक्वल टू 8 माइनस द नंबर ऑफ द डॉट। होता है ना वो वैलेंसी निकालने सीखी है ना बेटा आप लोगों ने 10th क्लास में, या तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, अब जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, क्लोरीन की कितनी है 1, ठीक, तो हम उसी के अकॉर्डिंग तो निकालते हैं, यानी कि 7 थे एल्यूमिनियम के पास, तो इसको 8 माइनस 7 ही करके हमने 1 निकाला ना, तो जो गेन करते हैं उनका 8 माइनस करके जो लूज कर रहे हैं जितने वो लूज करते हैं उतनी ही उसकी वैलेंसी हो जाती है, हमने पीछे चैप्टर्स में भी पढ़ा है। So this one is our starting, and you can be take out the factors affecting the factors भी कर ही लेते हैं, फिर आगे आगे चैप्टर्स भी बड़े होंगे। तो हमारे पास 3 स्टेप्स हैं तो 3 फैक्टर्स भी होने चाहिए। ये देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन और आयनिक बॉन्डिंग, कि कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकता है, किसको आयनिक बॉन्डिंग को। तो हमारे पास फर्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। As we know, ionization energy is the minimum energy required to remove the most loosely bound outermost electron of an atom in a isolated gaseous atom। बेटा सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से लास्ट चैप्टर में भी मैंने बताया है कि ये होते हैं, तो वो तो होती है इसकी
डेफिनेशन आयनाइजेशन एनर्जी की, तो पहले पढ़िए, इसलिए मैंने आपको सिर्फ बता दी, राइट करना ज़रूरी नहीं है। द सेम वन एज वी रीड पर अर्लियर, सोडियम को सोडियम आयन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए ना, इज इट क्लियर? तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल, लो होनी चाहिए कि हाई? अब ये देखो 281 है, इफ दिस लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इज इजीली बी लूज, जितना जल्दी वो लूज करेगा उतनी ही हम क्या कहेंगे, लेस आयनाइजेशन एनर्जी, विदाउट मच एफर्ट्स वो रिमूव हो जाए तो लेस ही कहेंगे ना। जितना जल्दी ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया उतना ही जल्दी हमारी क्या बन जाएगी, कैटायन बनेगा, कैटायन फॉर्मिंग हो जाएगा, और हम कहेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन बनेगा। बेटा यस और नो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि हाँ जी मैडम बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा ना। इसका मतलब लेस आयनाइजेशन एनर्जी, मोर विल बी द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, जितनी जल्दी कैटायन बनेगा उतनी ही जल्दी तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा एनायन के लिए, ताकि वो उसे एक्सेप्ट कर पाए। क्लियर? तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी, एंड फॉर मेकिंग अ स्मूथ आयनिक बॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी इन लो। तो आपके पास क्या होना चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, द ease with which an atom can lose electron, that depends upon the ionization energy, and ionization energy or enthalpy is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom। क्लियर? तो हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ ना, इसके लिए चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी, and lesser the ionization enthalpy of the atom, greater will be the ease of losing of the valence electrons, and most probable or greater tendency to form the ionic bonding, वो उतना ही अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा और जल्दी बनेगा। डू यू गेट माई पॉइंट? सो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मतलब जिसके 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव या हाईली मेटेलिक होते हैं, लूजिंग वाले हाईली मेटेलिक होते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेप के लिए तो जितना आपका हाईली मेटेलिक फॉर्मेशन होगा उतना ही आयनिक बॉन्डिंग अच्छी होगी, जल्दी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। फिर अब हमारे पास आता है नेक्स्ट वाला, कौन सा, गेन एंथैल्पी, सेकंड के लिए। गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या थी? That one is the tendency of an atom to gain electron, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, गेन एंथैल्पी पे। and electron gain enthalpy is the amount of energy released when an atom is added to an isolated gaseous atom to form a negative ion, यानी सेकेंड स्टेप के लिए जो चाहिए थी यहाँ, तो इसके लिए कितनी है, इसको ऐड करने पर जितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी यहाँ इसके साथ, वो हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इज इट क्लियर? इसका मतलब सेकेंड स्टेप के लिए चाहिए, और सेकेंड स्टेप के लिए कैसी चाहिए, गेन एंथैल्पी कौन सी, नेगेटिव गेन एंथैल्पी चाहिए भाई, क्योंकि जितने ज़्यादा नेगेटिव होगी उतनी ही तो वो ज़्यादा उसको एक्सेप्ट करेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया था, अब वो जितना ईजिली ये ले ले, इसको फटाफट मिल गया, आउटसाइडिंग में लगाएगा तो उसको कोई जल्दी से रिमूव भी कर देगा, नहीं, इसने ये इलेक्ट्रॉन इसका छीना है तो ये अंदर तक छुपा के आएगा, ताकि किसी और को ये दोबारा निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। ठीक है, और जब वो अंदर तक जितना छुपाएगा उतनी ही ज़्यादा गेन एनर्जी रिलीज करेगा। यस और नो? सो वी कैन से दैट हायर द वैल्यू ऑफ गेन एंथैल्पी, कौन सी, हायर द वैल्यू ऑफ
नेगेटिव गेन एंथैल्पी, जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी वो नेगेटिव भी होती है। दैट टाइम ग्रेटर विल बी द एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनायन, तो इसका मतलब फास्टर एनायन फॉर्मेशन होगा। और जितना एनायन फास्टर बनेगा उतना ही दूसरे की बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होगा, कि जितनी जल्दी कैटायन एनायन बनेंगे आयनिक बॉन्ड तो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा ना बेटा। तो हम कह रहे हैं जनरली एलिमेंट विच हैव हाई गेन एंथैल्पी वैल्यू टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, और वो किसके पास होते हैं, हैलोजन्स के पास, नॉन मेटल्स के पास। यानी फर्स्ट स्टेप्स में मेटेलिक होने चाहिए ज़्यादातर, सेकंड स्टेप के लिए नॉन मेटेलिक होने चाहिए। अब हमारे पास कैटायन एनायन दोनों ही रेडी हो गए हैं, हो गए हैं नहीं, कैटायन भी बन गया एनायन भी बन गया। तो हमें क्या चाहिए, दोनों को कंबाइन करने के लिए वो चाहिए लैटिस एंथैल्पी, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया कि लैटिस क्या होता है। लैटिस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ये तो मैं आपको अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, उनका अरेंजमेंट कहाँ वो जाके अरेंज होंगे, जगह भी बोल सकते हो, क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, हमने थर्ड स्टेप लेना है इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव को कंबाइन कराने के लिए। तो जितना हम इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करवा पाएंगे, जितने ये एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्शन करेंगे, इंटरनली इंसर्ट कर लेंगे, उतना ही हमारा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसका मतलब हम क्या कहें, हायर एंथैल्पी चाहिए, और इनके लिए जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उसको ही हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। एक्चुअली क्या है तो इन दोनों के अट्रैक्शन पावर से, बट मेजर किस में होती है, वही गेन एंथैल्पी की तरह रिलीज फॉर्मेशन में। जो जितने ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच होगा उसको एक दूसरे से अलग करने में उतनी ही एनर्जी रिमूव होगी, तो वो परमोलरिक उसी फॉर्मेशन में बोला जाता है। Is it clear? So the formation and the strength of an ionic bond that depends upon the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ion. Clear? And due to the strong attraction between the ions, the crystal always be release the energy. Combination में हमेशा release होती है energy. So the amount of energy released, मैं लिख दूँ आपको अगर सारा रिमूव करके लिखूँ, चलो मैं लैटिस एनर्जी लिख देती हूँ बेटा, क्योंकि ये आपने पहले नहीं पढ़ी। दिस वन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की फॉर्म में ही होगी, व्हेन फ्री आयन कंबाइन टुगेदर to form 1 mole of a crystal. क्रिस्टल, अब बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा छोटे छोटे। यहाँ क्रिस्टल किसको कहते हैं, दिस वन इज द 3D अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन देयर रेगुलर ज्योमेट्री। परफेक्ट जो शेप होती है, आयंस आयंस जरूरी नहीं है, एटम्स एंड आयंस मॉलिक्यूल। क्रिस्टल वर्ड सुना ना, क्रिस्टल का मतलब है, मान लो टेट्राहेड्रल है तो 4 एटम होंगे, तो वो टेट्राहेड्रल साइड्स पे उनकी पोजीशन फिक्स है, ऐसा नहीं कि वो ट्रायंगुलर दिखें, उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। इसका मतलब जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो पॉजिटिव की भी पोजीशन फिक्स है, नेगेटिव की पोजीशन फिक्स है, वो कहाँ जाके अटैच होएगा, और जब उनकी फिक्स एनर्जी हो जाएगी तो उन दोनों को फिक्स जगह से एक दूसरे से अट्रैक्ट कराने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी ताकि उसका एक मोल बन जाए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। Is it clear? So we can be say that higher the lattice energy, अगर ये भी ज़्यादा हुई तो हमारे पास क्या है, stronger will be the
आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा हुई और आयनिक कंपाउंड ज़्यादा बनेगा। इज इट क्लियर? सो हमें क्या चाहिए? लो आयनाइजेशन चाहिए, हाई गेन एंथैल्पी चाहिए, हाई लैटिस एनर्जी चाहिए, तो जाके हमारे पास क्या बनेगा? एक स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड होगा या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी। क्लियर? तो जनरली अब हमें क्या पता, आयनाइजेशन क्या होता है? एंडोथर्मिक, गेन एंथैल्पी प्रोसेस एक्सोथर्मिक, और एंडोथर्मिक वो डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव होती है जब, और लैटिस एंथैल्पी हमारी रिलीज कर रही है तो हमेशा नेगेटिव हुई। नाउ इफ द नेट इफेक्ट ऑफ द अबोव थ्री फैक्टर, तीनों का, इज द रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट टाइम आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज। क्या कह रहे हैं? जो नेट इफेक्ट है तीनों का is release of energy, overall release ही होना चाहिए उसमें, then only ionic bond form। अगर नहीं हुई है तो बॉन्ड में प्रॉब्लम होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, कंपाउंड स्टेबल नहीं होता, and that one is according to the journal assumptions। क्लियर? अब एग्जैक्ट एनर्जी वैल्यूज तो बेटा याद नहीं होती और ना ही हम कभी ऐसे पढ़ाते हैं, तो हम उन्हें बता ही नहीं सकते कि फर्स्ट स्टेप में कितनी एनर्जी, सोडियम को बनाने में कितनी आयनाइजेशन लगी, कितनी क्लोराइड की गेन एंथैल्पी हुई, फिर टोटल एनर्जी कितनी हुई, वो हम सब किस में पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, जहाँ एनर्जी वैल्यूज की बनाते हैं। दिस a quantitative measure of stability of the ionic compound is only provided by its lattice enthalpy, not only simply by achieving the octet of the electrons। ठीक है? तो लैटिस एंथैल्पी और नेट एनर्जी पे डिपेंड करेंगे हम। तो सम अप क्या कर सकते हैं हम इसको, कि आयनाइजेशन एनर्जी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई एंड लैटिस एनर्जी शुड बी हाई होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर आप इन्हें साइज वाइज से कांटेक्ट करें तो लो आयनाइजेशन के लिए तो साइज कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, जितनी जल्दी वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और एनायन बनने के लिए छोटा होना चाहिए। इसका मतलब बेस्ट फॉर्मिंग कब होती है? जब मेटल बड़ा हो, एनायन छोटा हो और फिर लैटिस एनर्जी ज़्यादा लगी हो, तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है? बहुत अच्छा, यानी कि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड का कंपाउंड बनता है। इज इट क्लियर? सो आई थिंक दिस वन इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। फर्स्ट ही लेक्चर स्टार्ट किया आज हमने, ज़्यादा नहीं करते। यू हैव द लोट ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर दैट वन, so you maybe revise down the ionic bond formation, definition of that one, and factors affecting, you may draw the Lewis dot structure. So here I am giving the homework related to your Lewis dots. Write Lewis dot symbols। बेटा डॉट सिंबल का मतलब है, तो फिर सिर्फ आपने डॉट लिखना है for the following atoms और आयंस, दोनों ही दे देती हूँ। ठीक है ना? कि एटम के लिए भी लिख सकते हो, आयन के लिए। फर्स्ट लिखो आप ऑक्सीजन के लिए, फिर हम लिखेंगे O2 नेगेटिव के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट होगा, यानी कि मैं डिफरेंस भी बता देती हूँ। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6, तो आप 6 डॉट लगाएंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे? 6 वैलेंस और 2 उसने एक्स्ट्रा, तो टोटल कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, तो आप 8 डॉट लगाएंगे। समझ गए? यानी इसके पास वैलेंस, मैं 2 सॉल्व करके बता देती हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, तो ऑक्सीजन के कितने डॉट दिखाओगे आप? 6। क्लियर? यहाँ हमारे पास कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हैं 6, गेन कितने किए? 2, टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो डॉट कितने दिखाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8,
टोटल 8 दिखाएंगे और उस पर 2 नेगेटिव मस्ट भी शो करना पड़ेगा। क्लियर? तो थर्ड आप लिखेंगे कैसे बनाना है हमें, मैंने दिया आपको Br1 नेगेटिव। क्लियर? फिर फोर्थ दे रही हूँ मैं आपको सिलिकॉन का, 2 तो मैंने बना दिए। फिर हम ले लेते हैं कौन सा, फिफ्थ फॉस्फोरस का। सिक्स्थ आप ड्रॉ करना किसका, एल्यूमिनियम का ले लो। फिर नेक्स्ट आप ड्रॉ कीजिए किसके लिए, फॉस्फोरस आयन का। फिर आप लो किसी के भी बना लो बेटा, प्रैक्टिस करनी है, नाइट्रोजन बना लो। फिर हम एक और दे देते हैं आपको, लिथियम 1 पॉजिटिव। सिंपल सिंपल दूँ, वैसे तो आपको मैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की भी प्रैक्टिस दे सकती थी, बट चलो कोई नहीं। नेक्स्ट आप लिखना किसका, सल्फर, +2 के लिए लिखना, चलो कोई बात नहीं, कुछ भी ड्रॉ कर लो। इज इट क्लियर? सो दिस वन इज योर होमवर्क। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन बी कॉल मी, and it's a request, it's better to call me as compared to the type on WhatsApp, because that consumes time, sometime I'm not be replied instantly. Clear? Or I'm not happy with your test because most of the students are not giving the test. I receive only 34 tests और मैं ग्रुप पे भी से नहीं डालना चाहती बेटा, सिर्फ इसीलिए नहीं डालना चाहते। ठीक है, आप लोगों को ये टेस्ट कोई टेस्ट नहीं लगते, यू कैन, आपको टेस्ट वही लगता ना जो यूटी में हो, वो इंटरनल मार्क्स कहाँ से आएंगे जब आप इन्हें क्लब करेंगे। व्हाट डू यू थिंक, these classes are useless, or do you think that we can repeat these one? No, there is no time to be repetition, we can revise only for our exams. If this one is not open till the half yearly exam, then what can you do and what shall we do? Now think yourself. और मैं बेटा सिर्फ उसी बच्चे की हेल्प कर सकती हूँ जो खुद पढ़ना चाहता है, मेरी क्लास में आता है टेस्ट नहीं देता है, आई डोंट लाइक दैट वन। मेरी क्लास में आता है टेस्ट भी देता है, तो उसके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना आई थिंक मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ, और उस बच्चे के लिए मैं आधी रात को भी रिप्लाई देने को तैयार हूँ, बट अननेसेसरी चीज़ों के लिए नहीं है। बट यू राइट मी कि सिलेबस डिलीट क्या हो गया, हमें पेज नंबर बता दीजिए। बेटा मेरे पास बुक्स हैं, आपके पास कौन सी बुक है मुझे पता है। अब +1 का बच्चा अगर डिडक्टेड सिलेबस फाइंड आउट नहीं कर सकता तो मैं उसे क्या जवाब दूँ? फिर आप कहते हो, एंड सेकेंडली दोज प्रॉब्लम्स हु हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे कैन डायरेक्टली अप्रोच टू मी। दूसरे से तो बेटा प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। Is it clear? So this one is enough for today. We have learned only about the introductory part of the ionic bonding, and this one clear, factors affecting the ionic bond, and we may proceed further on tomorrow at the same timing 7:30 a.m. at our live class. I will not give the link for that class, and from the next time onwards those students who are not attending my class, I'm blocking those one from my class list. रेगुलरिटी बेटा टीचर्स को भी अच्छी लगती है, रेगुलर आओगे मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे एंड रीड योर चैप्टर, स्टार्ट योर चैप्टर। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।